ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो 10th चैप्टर पहले 14 श्लोक कर लिए हमने, आज 15वां करेंगे। स्वयं एवात्मनात्मानं मानाम वेत्था त्वं पुरुषोत्तम, वेता त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश, भूत भावेन भूतेश देव देव जगत्पते, देव देव जगत। ओके, ट्रांसलेशन और पर्पट पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और पहला पैराग्राफ पर्पट का? Yes, Hare Krishna. हरे कृष्ण। I will read. हाँ प्लीज पढ़। Translation. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. Purport. The Supreme Lord Krishna can be known by persons who are in relationship with him through the discharge of devotional service like Arjun and his followers. Persons of demonic or atheistic mentality cannot know Krishna. Mental speculation that leads one away from the Supreme Lord is a serious sin, and one who does not know Krishna should not try to comment on Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the statement of Krishna, and since it is the science of Krishna, it should be understood from Krishna as Arjun understood it. It should not be received from an atheistic person. Should I continue? हरे कृष्णा। Yes, you can continue. As stated in Srimad Bhagavatam 1.2.11, Vadanti tat tattva vidas tattvam yachim jnanam advayam brahma iti paramatmeti bhagwan iti sabdayate. The supreme truth is realized in three aspects: the impersonal Brahman, localized Paramatma, and at last as the Supreme Personality of Godhead. So, at the last stage of understanding the absolute truth, one comes to the Supreme Personality of Godhead. A common man, or even a liberated man who has realized impersonal Brahman or localized Paramatma, cannot understand God's personality. Such men, therefore, may endeavor to understand the Supreme Person from the verses of Bhagavad Gita, which are being spoken by this person, Krishna. Sometimes the impersonalists accept Krishna as Bhagwan or they accept his authority. Yet many liberated persons cannot understand Krishna as Purushottam or Supreme Person. Therefore, Arjun addresses him as Purushottam. Yet one still may not understand that Krishna is the father of all living entities. Therefore, Arjun addresses him as Bhuta Bhavana. And if one comes to know him as the father of all living entities, still one may not know him as a supreme controller. Therefore, he is addressed as Bhutesa, the supreme controller of everyone. And even if one knows Krishna as the supreme controller of all living entities, still one may not know that he is the origin of all demigods. Therefore, he is addressed herein as Deva Deva, the worshipful god of all demigods. And even if one knows him as a worshipful god of all demigods, one may not know that he is the supreme proprietor of everything. Therefore, he is addressed as Jagatpati. Thus, the truth about Krishna is that he is
established in the verse by the realization of Arjun, and we should follow in the footsteps of Arjun to understand Krishna as he is. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रांसलेशन में, अर्जुन बोल रहे हैं कि आप यू अलोन नो योरसेल्फ बाय योर इंटरनल पोटेंसी, कि आप ही अपने आप को जानते हो, आपकी जो योग माया शक्ति है उसके द्वारा। बाकी सब लोग तो जान नहीं सकते आपको, आपकी कृपा हो तो जान सकेंगे। आप सारे देवों के देव हो, आप पूरे जगत पते, जो जगत का पालनहार कर रहे हैं वो हो आप। भूत भावन भूतेषु, सारे लिविंग एंटिटीज के आप जो हो लॉर्ड हो, पालनहार हो। तो परपट के अंदर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम है। कृष्णा कैन बी नोन पर्सन हु आर इन रिलेशनशिप विद हिम थ्रू द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भगवान को उन्हीं के द्वारा जाना जा सकता है जो भगवान के साथ भक्ति में जुड़े हुए हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यवन्यश्चास्मि तत्वतः, ये आगे श्लोक आएगा भगवद गीता में, वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। जो राक्षसी, आसुरी प्रवृत्ति, नास्तिक प्रवृत्ति की मेंटालिटी के लोग होते हैं वो कृष्णा को नहीं जान सकते। कई बार लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उन्होंने ठीक से नॉलेज गेन करी नहीं है, लेकिन वो बैठ जाते हैं माइक लेके और बोलने लग जाते हैं कि भगवान मेरे हिसाब से तो ऐसा है, मेरे हिसाब से तो ये ऐसे है, भगवद गीता में मेरे हिसाब से तो ये लिखा है। कोई कहता है मैंने पढ़ी नहीं है भगवद गीता लेकिन ये है। तो ये सब चीजें जो लोग बोलते हैं ये एक्चुअली बहुत गलत है। इससे क्या होता है, आपको खुद ज्ञान है नहीं और आप लोगों के अंदर गलत धारणाएं फैला रहे हैं बिना ज्ञान के। तो ये बिल्कुल भी उचित प्रवृत्ति नहीं है। उचित प्रवृत्ति क्या है कि आप खुद अच्छे से नॉलेज लो फिर आप दो। अगर आपके पास नहीं है नॉलेज तो आप चुप रहो, आप किसी और टॉपिक से बोल दो। आपको जरूरी थोड़ी है भगवान के बारे में भी बात करनी है जब आपको का खाता नहीं है और आप बोलने शुरू हो जाओ जस्ट स्पेक्युलेट करके। ये बिल्कुल उचित नहीं है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में से कोट कर रहे हैं इस श्लोका, और इस श्लोका में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भगवान की रियलाइजेशन है वो 3 प्रकार की होती है। एक स्टेज में ज्यादा आइडिया नहीं होता, एक वेग अंडरस्टैंडिंग होती है कि इम्पर्सनल निराकार ब्रह्मन शक्ति हर जगह विद्यमान है सृष्टि में, तो वो ब्रह्मन हो गए। ब्रह्मन वर्ड भगवान के लिए भी यूज होता है और जीव के लिए भी यूज होता है। और कभी कभार ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इन लोगों की, ये जीव है और भगवान है एक ही है। तो ये सब चीजें जो हैं ये इम्पर्सनल ब्रह्मन की रियलाइजेशन है। बहुत ज्यादा अभी इनको स्पेसिफिक रियलाइजेशन नहीं हुई, बस इतना है कि ये ऐसे भगवान शक्ति के तरह हर जगह विद्यमान है, ऐसे चला रहे हैं सबको। और जीव और जो सुप्रीम ब्रह्मन है ये सब मैटर से अलग हैं। तो ये सब नॉलेज है थोड़ी। फिर दूसरी आ जाती है रियलाइजेशन, उसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन, कि हाँ ठीक है ब्रह्मन भी है लेकिन साथ साथ लोकलाइज भी है हर आत्मा के साथ परमात्मा, और वो गाइड कर रहे हैं। ये दोनों रियलाइजेशन हो गए परमात्मा। लेकिन जो भगवान रियलाइजेशन है उसमें ये है, हाँ ठीक है आपका इम्पर्सनल रियलाइजेशन भी है, लोकलाइज परमात्मा रियलाइजेशन भी है उनको, और तीसरी ये भी पता है उनको कि भगवान अपने पर्सनल फॉर्म में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। और कभी वो खुद आते हैं लीला करने के लिए, और कभी जो है वो गोलोक वृंदावन में ही लीला सिर्फ करते हैं या वैकुंठा प्लैनेट्स में ही करते हैं, और भक्त जो हैं वहां उनके साथ जाके लीला करते हैं। तो ये सब कंप्लीट रियलाइजेशन जो है उसको कहते हैं भगवान रियलाइजेशन। तो ये 3 प्रकार की रियलाइजेशंस यहाँ पे शास्त्रों में बताई गई हैं। श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण में पहले कैंटो के दूसरे चैप्टर में 11 श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है।
फिर यहाँ पे प्रभुपाद उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कॉमन पर्सन है जिसको ज्यादा आइडिया नहीं है, या फिर कोई ऐसे भी हैं जो लिबरेटेड मोक्ष की स्थिति प्लेटफॉर्म में आ जाए, वो भी सिर्फ इम्पर्सनल भ्रमण रियलाइजेशन तक या ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज परमात्मा रियलाइजेशन तक आ पाते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को एक्चुअली समझ नहीं पाते, बिल्डर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या रिकमेंडेशन दिया गया है कि भगवत गीता से समझना चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे गुरु जिनकी हाईएस्ट रियलाइजेशन है, उनसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, भगवत गीता को सीखना चाहिए, तब समझ में आ सकता है। क्योंकि कई बारी जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, जो भगवान का रूप के बारे में जानते नहीं है, जो सोचते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है, लेकिन जो इम्पर्सनल है वो सिर्फ ये माया के रूप में आके, माया के प्रभाव में आके कृष्ण का रूप लेके आया है, लेकिन ये कृष्ण का रूप जो है ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो निराकार है भगवान, ऐसा कई बार सोचते हैं। तो ये भी उनकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते कि कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए अर्जुन ने यहाँ पे स्पेसिफिकली एड्रेस किया कृष्ण को पुरुषोत्तम, कि भगवान एक पर्सन है, पुरुष है, और इसलिए वो भगवान जो है वो निराकार नहीं है। और कई लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि भगवान कैसे हैं, परम पिता कैसे हैं, वो परम पिता परमेश्वर कैसे हैं, ये भी नहीं समझ में आता कई लोग। इसीलिए अर्जुन ने स्पेसिफिकली एड्रेस किया है भूत भावना। क्योंकि आगे भी भगवत गीता में भगवान अपने आप को कहेंगे अहम बीजा प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो अगर किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आए, इफ वन कम्स टू द नो हिम एज द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, स्टिल वन मे नॉट नो हिम एज द सुप्रीम कंट्रोलर, फिर भी उनको ये नहीं पता लगेगा कि ये परम ईश्वर है, परम कंट्रोलर है। तो इसलिए लोग समझ नहीं पाएंगे। And even if he knows them as supreme controller of all entities, still he may not know that he is the origin of all the demigods. और अगर उनको पता भी चल जाए कि ये परम कंट्रोलर है, परम ईश्वर है, नहीं फिर भी उनको शायद ये ना पता लगे कि ये सारे देवी देवताओं के भी कंट्रोलर हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने उनको एड्रेस किया है देव देव, द वर्शिपफुल गॉड ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, जो देवों के भी देव हैं। और अगर इस प्लेटफॉर्म में भी आ जाएं तो भी कई बारी उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सब चीजों के प्रोप्राइटर हैं, मतलब कि सारी चीजें इन्हीं को बिलोंग करती हैं। तो इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया जगतपति, जगत के कर्ता धर्ता आप ही हो, यू आर द लॉर्ड ऑफ द होल क्रिएशन। Thus the truth about Krishna is established in this verse by realization of Arjun, and we should follow in the footsteps of Arjun to understand Krishna as he is. तो इसलिए अर्जुन ने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया इन सब शब्दों से, और हमें अर्जुन को फॉलो करके ही समझनी चाहिए भगवत गीता, जिस स्पिरिट में, जिस अंडरस्टैंडिंग से उसने समझी थी, तभी हमारे को पूरी रियलाइजेशन हो। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा 10.15। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ट्रांसलेशन फिर से पढ़ रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं इंडीड यू अलोन नो योरसेल्फ बाय योर ओन इंटरनल पोटेंसी, ओ सुप्रीम पर्सन, ओरिजिन ऑफ ऑल, लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स, गॉड ऑफ गॉड्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 10.16। वक्तुम अर्हस्य शेषेण, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्य ही आत्मविभूतया, दिव्य ही आत्मा दिव्य हि विभूतया आत्मविभूतया
याभिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिर्विभूति याभिर्विभूतिभिर्लोकान् लोकान् इमं त्वं व्याप्य तिष्ठसि इमं। इमं स्वव्याप्य तिष्ठसि। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पपट? छोटा सा इसका। I will read. पढ़िए। Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. Purport. In this verse, it appears that Arjuna is already satisfied with his understanding of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. By Krishna's grace, Arjuna has personal experience, intelligence, and knowledge, and whatever else a person may have. And through all these agencies, he has understood Krishna to be the Supreme Personality of Godhead. For him, there is no doubt, yet he's asking Krishna to explain his all pervading nature. People in general and the impersonalists in the particular concern themselves mainly with the all-pervading nature of the Supreme. So Arjuna is asking Krishna how he exists in his all-pervading aspect through his different energies. One should know that this is being asked by Arjuna on behalf of the common people. Hari Bol. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम के लिए सबको पता लग जाए। तो हमारे बिहाफ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आपकी क्या है अलग अलग दिव्य विभूतियां जिससे आप पूरे के पूरे जगत को आप जगत में विद्यमान हो। तो अभी आने वाले में इस चैप्टर का नाम है ना विभूति योगा। तो भगवान की विभूतियां यहाँ पे भगवान बताते हैं कि कैसे हर चीज में एसेंस जो है वो भगवान से आ रहा है। तो पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं अर्जुन जो है वो तो सैटिस्फाई है, वो तो संतुष्ट है। He is already satisfied with his understanding of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. By Krishna's grace, Arjuna has personal experience, intelligence, knowledge, and whatever else a person may have. And through all these agencies, he has understood Krishna to be Supreme Personality of Godhead. तो अर्जुन के पास तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, उसके पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, और जो भी किसी व्यक्ति को चाहिए समझने के लिए वो सब चीजें हैं। और भगवान की कृपा से उसके पास ये सब होने की वजह से उसको जो है भगवान के बारे में समझ में आ रहा है और समझ में आ गया है। उसको कोई ज्यादा डाउट नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए पूछ रहे हैं कृष्णा से। जो लोग हैं, खासकर जो मायावादी हैं, वो लोग भगवान की अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है कि भगवान हर जगह विद्यमान है। तो अर्जुन अब पूछना चाह रहा है कि कैसे कैसे विद्यमान है, आपकी शक्तियां कैसे हर जगह हैं। तो ये पूछा जा रहा है। चलो एक और श्लोका करेंगे, फिर उसके बाद हम कहूट करेंगे। आज सरप्राइज कहूट सबके लिए। कथम विद्यामहं योगींस कथम विद्यामहं योगीं त्वां सदा परिचिन्तयन् परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया चिन्त्योऽसि भगवन्मया। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ पपट? I can read. अंश पढ़ेगा ट्रांसलेशन। Okay. O Krishna, you, O Supreme Mystic, how shall I constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered? O Supreme Personality of Godhead. थैंक यू। यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे मैं आपको हमेशा आपको याद रख सकूं और कैसे मैं आपको समझ पाऊं। कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स में
आपको याद रखा जा सके, कैसे मैं आपका चिंतन कर सकूं। तो आप पर्पट में पढ़ दें। कौन पढ़ेगा पर्पट? भव्य, आप पढ़े Yeah. प्लीज। Purpose. As it is stated in the previous chapter, the Supreme Personality of Godhead is covered by his Yogamaya. Only surrendered souls and devotees can see him. Now Arjun is convinced that his friend Krishna is the Supreme Godhead, but he wants to know that the general process by which all the pervading Lord can be understood by the common man. Common men include the demons and atheists cannot know Krishna because he is guarded by his Yogamaya energy. Again, these questions are asked by Arjuna for their benefit. The superior devotee is concerned not only for his own understanding but for the understanding of all mankind. So Arjuna, out of his mercy, because he is a Vaishnava, a devotee is opening for the common man the understanding of all pervasiveness of the Supreme Lord. He addresses Krishna specifically as Yogin because Sri Krishna is the master of the Yogamaya energy by which he is covered and uncovered to the common man. The common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna. Therefore, he has to think materially. Arjuna is considering the mode of thinking of the materialistic persons of this world. The words Keshu Keshu cha Bhaveshu refers to the material nature. The word Bhava means physical things. Because materialists cannot understand Krishna spiritually, they are advised to concentrate the mind on physical things and try to see how Krishna is manifested by the physical representations. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पर्पट में बता रहे हैं प्रभुपाद के पहले भी ये बताया गया कि भगवान अपनी योग माया से ढक लेते हैं अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो भगवान को जान नहीं पाते। ओनली जो भगवान के को समर्पित हो पाए हैं, जो भगवान की भक्ति प्रेममयी भक्ति में लगे हैं और भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को भगवान रिवील करते हैं। और अर्जुन यहाँ पे जानना चाह रहा है कि क्या पथ है, क्या प्रोसेस है जिससे जो भगवान सब जगह विद्यमान है उनको समझा जा सके। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि आम आदमी या कई बारी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या जो क्या कहते हैं नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो भगवान को बिल्कुल जान नहीं पाते। योग माया के कारण ढके में है भगवान, तो उनको समझा नहीं जा सकता। लेकिन भक्त जो है भगवान का, उसको समझ में आ जाता है। Spirit devotee is concerned not only for his own understanding but understanding of all mankind. तो भक्त जो है उसको समझ में आता है और भगवान के बारे में वो बाकी सबको भी क्या कहते हैं जानकारी देना चाहता है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, और अर्जुन की वजह से जो है हम लोगों को जानने को मिल रहा है भगवान के बारे में। और यहाँ पे भगवान को कैसे एड्रेस कर रहे हो, करें योगी, क्योंकि कृष्णा जो है वो मास्टर ऑफ योग माया एनर्जी, वो जो योग माया है उसके भी नाथ है, उसके भी सोर्स है। और यहाँ लिखा है बाय विच ही इज कवर्ड एंड अनकवर्ड टू द कॉमन मैन। तो योग माया के प्रभाव से भगवान जो है वो अनकवर हो जाते हैं, मतलब कि हमें हमारे को समझ में नहीं आते और कवर हो जाते हैं। जैसे सूर्य जो है उसका प्रकाश बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन अगर रात हो जाए या ग्रहण लग जाए तो कई बार सूर्य भी हमें नजर नहीं आते। तो उसी तरह से भगवान भी कई बारी जो है वो योग माया के कारण ढक दिए जाते हैं और हमारे को समझ नहीं आते। जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आते, जो भगवान की शरण लेते हैं उनको समझ में आते हैं। तो भगवान के प्रति जिनका प्रेम है वो भगवान को जान सकते हैं, जो भक्ति से भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं वो जान सकते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते। Arjuna is considering the mode of thinking the materialistic person of this world. The word तो यहाँ पे बताया गया है कि केशु केशु च भावेशु जो है वो रेफर करता है मटीरियल नेचर को। The word bhav means physical things. Because materialists cannot understand Krishna spiritually, they are advised to concentrate mind on physical things, try to create. तो यहाँ पे बता रहे हैं
कि जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जो आम आदमी है, वो रोजमर्रा में स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो मटीरियल चीजों को देखते रहते हैं। तो कैसे मटीरियल चीजों को देख के भगवान का स्मरण हो सकता है, तो ये आने वाले श्लोकों में हमें क्लियर होगा। तो बहुत सारे सीरीज ऑफ श्लोक हैं इसमें, जहां भगवान बताते हैं कैसे जो बाहर चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं और परसीव करते हैं, उसके अंदर भी भगवान की विभूतियां हैं। तो वो आने वाले दिनों में हम उसमें और पढ़ेंगे। तो हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, तो हम कंक्लूड करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।